Hello everyone, welcome you all to Economics Fundamentals. As you know that in our previous class we had discussed about the employment, growth, informalization and other issues. Now it's time to discuss about infrastructure. Have you ever wondered that why Gujarat and Maharashtra have done really well in case of industrialization? Why Kerala is popularly known as God's own country, and it excels in the field of literacy, health and sanitation as well. Why some states are doing better in comparison to other? क्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा फ्लोरिश करता है? ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो स्टेट अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं. क्यों कर्नाटक जो है वो आईटी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है? बेंगलुरु का नाम आपने सुना है, द वर्ल्ड क्लास आईटी फैसिलिटीज अवेलेबल देयर. क्यों ऐसा है? क्यों व्हाई सम स्टेट्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन अदर्स? दिस इज ड्यू टू देयर डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. So this is what we are going to discuss today. The current challenges facing our Indian economy is one of the challenge is what is called as infrastructure. So as I have written in the board, infrastructure refers to the supporting services. It refers to the supporting services in the main areas of industrial and agricultural production. यानी ये सपोर्टिंग सर्विसेज को रिफर्स करता है जो मेन एरियाज में इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, डोमेस्टिक ट्रेड में एंड फॉरेन कॉमर्स में. यानी ट्रेड में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, सभी में जो सपोर्टिंग सर्विसेज है उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफर करते हैं. इसमें अब सपोर्टिंग सर्विस कौन कौन सी हो सकती है? देखिए आप क्या क्या हो सकता है इसमें. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं क्या क्या. रोड्स, रेलवेज, ओके, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, okay, education including school system, health including hospitals, etc. So these are the kind of services which can be put, these are the supporting services which can be put under the term infrastructure. Now as far as the classification is concerned, means in how many types we can consider the infrastructure. So it is mainly of two types. The first one is economic infrastructure, the second one is social infrastructure. Economic infrastructure, for example, the energy, the communication, the transportation services, they can be put under the economic infrastructure. Like for example, the energy and the telecommunication, as I told you. Now if we look about the social infrastructure, it consists the housing, the education, the health facility, which build the social infrastructure. So as we know that infrastructure can be classified into main two heads: economic infrastructure, as I told you, for example, energy, telecommunication, transportation, and social infrastructure, as I told you, the housing, the health, the education. So for example, health and sanitation. So this is how we can distinguish these the infrastructure classification. Now you can pause the video to note it down, then I will tell you the importance of infrastructure. So viewers, now we are moving ahead
towards the role and the importance of infrastructure. As we know that some states are performing very well in comparison to others. This is due to the development of better infrastructure over there. क्योंकि वहाँ पर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए कुछ स्टेट्स दूसरों के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला जो इसका फीचर है, पहला जो इसका रोल है, वो तो यही है कि इट बूस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैन बी बूस्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ बेटर रोड्स, बेटर रेलवेज, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर ट्रांसपोर्टेशंस। सो जैसा मैंने यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा हुआ है, इट बूस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को ये बढ़ा देता है, बूस्ट कर देता है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। दूसरा है बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जो आज की जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसका आधार है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो करेगी। ये आप भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के चलते, बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटी के चलते जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। फिर बेसिस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, जो आज की आधुनिक खेती है, अब उसमें सीड्स है, मॉडर्न सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स है। अगर उनकी स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन हो जाए तो आसानी से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ सकता है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन बेटर रोड्स के ज़रिए, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर ट्रांसपोर्टेशन की मदद से वो मार्केट में पहुंच सकता है वक्त पर, तो उससे जो एग्रीकल्चर है उसको फ़ायदा होगा। तो इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, देन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Yes, of course, it highly contributes to economic development. Why some states are prosper than others? This is due to their level of infrastructure. अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि एग्रीकल्चर को क्या चाहिए, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, उसके चलते जो है वो अच्छा प्रोड्यूस दे सकती है। फिर इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर जनरेशन अच्छा चाहिए, बेटर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जिसके चलते वो फ्लोरिश हो सकती है। तो ये अगर सेक्टर फ्लोरिश होंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। एंड सिमिलरली इट अफेक्ट्स एक्सेस टू हेल्थ केयर। देखिए, हमें पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेनली ऑफ टू टाइप्स, इकोनॉमिक एंड सोशल। Both are not separate. They are not independent with each other. They are interdependent. How they are interdependent? Suppose the infrastructure, economic infrastructure like transportation is developed enough, so it will provide a good access towards health services. भाई अगर आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपने देखा होगा बहुत सारे सुदूर इलाकों में, इंटीरियर्स में, जहाँ पर अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है या अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, कई सारे बीमार हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं। Why this so? This is the lack of better transport facility, the lack of better economic infrastructure. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सेस प्रोवाइड कराएगा। सो दे आर इंटरडिपेंडेंट। ओके, सो इसी तरीके से अगर हमारी सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी है, जो हमारे पास एक्सेस है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे, सो प्रोननेस टू डिजीज, जो मॉर्बिडिटी रेट है वो कम हो जाएगा, जो प्रोननेस टू वाटर बॉर्न डिजीज है। तो इस तरीके से ये दोनों टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ये अफेक्ट्स करता है एक्सेस टू हेल्थ केयर। आप हेल्थ केयर में किस तरह से एक्सेस ले सकते हैं, बेटर ट्रांसपोर्ट की मदद से, बेटर कम्युनिकेशन की मदद से। तो इसी तरीके से ये जो है दीज टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट। Then if we talk about the India's state of infrastructure, or what is the state of India's infrastructure, so we know that earlier it was assumed that
the development of infrastructure is solely the responsibility of public sector or the government only. But gradually it was realized that it's not only the government, but private sector can also contribute significantly in the development of infrastructure. भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में प्राइवेट सेक्टर भी एक बड़ा रोल अदा कर सकता है. कई बार वो अकेले, कई बार जॉइंट में, जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल. तो इसकी शुरुआत की गई. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का तरीका शुरू किया गया. फिर आप देखेंगे जो रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. देखिए, जो लो इनकम नेशंस हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, उन्हें तो क्या है, कुछ बेसिक टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर की ही जरूरत पड़ती है, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी. क्योंकि जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनका मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है, मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती है. खेती में इरिगेशन की जरूरत है, तो बेटर इरिगेशन उन्हें चाहिए, पावर जनरेशन उन्हें चाहिए, ठीक है, एनर्जी जिसको हम कहते हैं. सो उसमें क्या है, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पावर, यही उनके मेन सोर्सेज हैं. लेकिन जैसे ही कंट्री डेवलप होती है तो वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ता चला जाता है. और फिर उन्हें क्या चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी टाइप सर्विसेज आर रिक्वायर्ड. इसीलिए ज़्यादा जो शेयर है जो डेवलप कंट्रीज़ है उनकी जो डिमांड्स हैं वो सर्विसेज में ज़्यादा है. एनर्जी की डिमांड जो है वो ग्रो करती है जैसे जैसे कंट्री जो है वो डेवलप होता है. सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन आई विल टेल यू मोर. लर्नर्स, ये यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेटस है इंडिया और उसके पड़ोसी मुल्कों के बीच. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कंट्री में हमने लिया है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया. दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एज वेल. यहाँ पर पहले कॉलम में हम देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये डेटा 2014 का है. आप देखेंगे चाइना वॉज इन्वेस्टिंग 46% ऑफ जीडीपी in the year 2014, while India was investing 34%. So a huge gap in between India and China. Then we see the Pakistan is far behind and Indonesia is pretty closed. Okay, though Indonesia is a small country in comparison to us, but वहाँ पर हमारे पास ही है, लगभग 35% वो इन्वेस्ट कर रहा है. और चाइना में 46 है, जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा है. अगर हम एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर देखें, 2015 का ये डेटा है परसेंटेज में. सो 96% पीपल हैव द एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. इन इंडिया इट इज़ 94%, इन पाकिस्तान इट इज़ 91% एंड इन इंडोनेशिया इट इज़ 87%. While we talk about the access to improved sanitation, तो sanitation में हम देखें 77% चाइना में है, 40% इंडिया में है. See the difference. The difference is 37%. Even from Pakistan, the difference is 24%. There 64% people have the access to better sanitation. तो वहाँ पर 64% है और इंडोनेशिया में 61% है. तो we are lagging behind in this criteria from all the other countries. Mobile subscribers में हम देखें so 93 people are having mobile phone in per 100 people. So 93% we can say, 79 in India, 70 in Pakistan and 132 surprisingly in Indonesia. As far as the power generation is concerned, the figures are given in billion kilowatt. It is the year of 2016. So China was producing or generating the 6,015 billion kilowatt electricity. Then in India it was only 1,423, in Pakistan merely 105 and in Indonesia 249. So this is a glance. Just have a look what kind of infrastructure India is having and its neighbors are having.
Now we will talk about the state of India's rural infrastructure. अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो आज भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द बायोफ्यूल्स। और 2001 का अगर हम सेंसस देखें तो उसमें 53% लोग जो हैं, केवल 53% हाउस होल्ड ऐसे थे, 56% जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस था, और 43% ऐसे हाउस होल्ड हैं, यानी ओनली 56% हाउस होल्ड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। 43% are using kerosene oil, okay, as we know that जो मेजोरिटी है वो कहाँ से आती है, वो रूरल एरियाज से आती है। और रूरल एरियाज में आज भी लोग फायरवुड, काऊ डंग केक्स और जो क्रॉप रेजिड्यूज है उसी पर डिपेंड करते हैं। तो ये है हमारे रूरल एरियाज का स्टेटस। अबाउट 76% ऑफ द पॉपुलेशन ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम ओपन सोर्सेस, ठीक है। और केवल इम्प्रूव्ड सैनिटेशन जो है वो सिर्फ 20% तक ही है। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन is only for 20% household. I am talking about the rural areas. So ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेटर सैनिटेशन है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, वो केवल 20% लोगों तक ही है, और 76% लोग ऐसे हैं जो ओपन सोर्सेस से पानी लेते हैं, चाहे वो वेल हो, पॉन्ड हो, कैनल हो, या इस तरीके से रिवर हो, वहाँ से ओपन सोर्सेज से जो है पानी लेते हैं। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, देन आई विल टेल यू अबाउट द एनर्जी, अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी एज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला सवाल है कि व्हाई डू वी नीड एनर्जी? एनर्जी, या जो मोस्ट पॉपुलरली नोन एज पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों चाहिए हमें? पहले, इंडस्ट्री में इसके बिना काम नहीं होगा। दूसरे, आज मॉडर्न फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर में या फार्मिंग में आप देखते हैं थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, या आपके जो मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन हैं, उनको चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी जो है हमें आज हर तरफ इसकी ज़रूरत है। फिर अगर आप देखते हैं कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, सो इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कमर्शियल एज वेल एज नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल आपको पता ही है, जैसे फायरवुड है, काऊ डंग केक्स हैं, एनिमल्स वेस्ट है, ये नॉन कमर्शियल है। दूसरे, कमर्शियल की आप बात करें जो कन्वेंशनल में ही है, जैसे कि कोल है, जो फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। दोनों में अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहें तो जो कन्वेंशनल में कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, विच इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, इट इज नॉट रिप्लेनिशेबल, इट इज एग्जॉस्टेबल इन नेचर, यानी ये जो है एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा, जो आपका नॉन कमर्शियल यूज़ है, जैसे कि फायरवुड है या एनिमल वेस्ट है, वो मेनली क्या होता है, रिप्लेनिशेबल होता है और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर आप देखेंगे दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज द नीड ऑफ द आवर। आज के दौर में हमें इन्हीं गैर परंपरागत साधनों की ज़रूरत है। इसमें मेनली आपका आता है सोलर
wind and hydel. Solar, wind and hydel energy. ओके, सो इसमें आप देखेंगे कि बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया is having a great sources of this kind of energy, whether it is solar, whether it is wind. Okay, so when we talk about this kind of energy, solar energy, wind energy, what is called as tidal energy. Okay, so it is known as the tidal energy. So tides, or what is called as when we use this electricity generation with the help of the high tides of water. Okay, so tidal energy and especially the solar and the wind, as we know that India is a tropical or subtropical country. So being a tropical country, it has this kind of energy in the abundance form. बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास है, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और नॉन एग्जॉस्टेबल इन नेचर. सो इसलिए इस तरह की एनर्जी को इनकरेज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका हम यूज़ करें. सो अब हम आ गए हैं पावर और इलेक्ट्रिसिटी पर. पावर इज़ द मोस्ट commonly used economic infrastructure now in the modern civilization, or power which is popularly known as electricity. इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है. स्टडी बताती है कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 8% है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड या पावर की डिमांड 12% होगी, यानी हमेशा जीडीपी ग्रोथ से हायर होगी. आज आप देख रहे हैं ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, हाउस होल्ड में जगह जगह हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है. पावर इज़ यूज फॉर कुकिंग, फॉर हीटिंग इन हाउस होल्ड, इट इज़ यूज टू रन द मशीन्स इन द इंडस्ट्री, इट इज़ यूज टू रन द एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स इन मॉडर्न फार्मिंग. सो एवरीवेयर वी आर यूजिंग पावर. अगर आप देखें पावर जो जनरेशन का जो डिफरेंट सोर्सेज है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड के, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थर्मल सोर्सेज से. थर्मल पावर जनरेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑलमोस्ट 67%. तो इसमें आप देखेंगे कि 67% जो है वो हमारे यहाँ थर्मल एनर्जी है. ओके, फिर सेकेंड लार्जेस्ट 14% कौन सी है? हाइडल है, यानी हाइड्रो पावर है. और वी आर कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली 2% इन न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी. जबकि आप देखेंगे ग्लोबली जो न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी है दिस कॉन्स्टिट्यूट 13%. ये ग्लोबल एवरेज है, तो ग्लोबल एवरेज से हमारे यहाँ ये काफ़ी कम है. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि हमें जो एटॉमिक एनर्जी के सोर्सेज हैं उन्हें बढ़ाना चाहिए, वहाँ से जनरेशन बढ़ाना चाहिए. लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं, वी हैव टू स्विच ओवर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक the solar energy, the wind energy as well. As we know that India is known as the superpower in terms of solar energy or wind energy, because being a tropical country we have this kind of energy in the abundance form. बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास है और नॉन एग्जॉस्टेबल है, तो इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. Now we are moving towards the challenges which this power sector is facing for. पहला है लो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड अंडर यूटिलाइजेशन. आप देखते हैं जो हमारी पावर डिमांड है इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, लेकिन जो इसका जनरेशन है वो उतना नहीं है जितनी डिमांड है. फिर दूसरी बात, सो लो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, फिर आप देखते हैं जनरेशन, फिर ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन.
3 स्टेजेस होती हैं पावर की। सो जनरेशन कम है, फिर ट्रांसमिशन में कुछ लॉस्ट हो जाती है, और उसके बाद जो एक्चुअल कंज्यूमर तक पहुंचती है जो नेट क्वांटिटी में, दैट इज फॉर फाइनल कंजम्पशन। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां तक जाते जाते बहुत कमी हो जाती है। सो इसके चलते क्या होता है, हमारी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। जैसे मैंने पिछले टेबल में आपको बताया था, वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली 20,000 मेगावाट्स इन ईयर। सो जबकि हमें उसकी ग्रोथ रेट को कम से कम 8% रखना है, तब पावर जनरेशन जो है उतना हो पाएगा। फिर देखेंगे लॉस इनकर्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। दिस SEBs स्टैंड्स फॉर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। हमारे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, दे आर इनकरिंग लॉसेस। ऐसा माना जा रहा है कि 500 बिलियन करोड़ का इन्हें लॉस हो चुका है। सो इस वजह से भी हमारे पास ये एक बड़ा चैलेंज है कि इसकी सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। फिर क्यों है ऐसा? लेस रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ निजी क्षेत्र का जो है वो कम रोल है। आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर आर मेंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, इसीलिए जो SEBs है दे आर इनकरिंग लॉस। फिर जनरल पब्लिक अनरेस्ट। अब होता क्या है, जब जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनमें लॉस होता जा रहा है, तो दे आर इंक्रीजिंग द टैरिफ रेट्स। सो कंटिन्यू टैरिफ हाइक एंड द पावर कट्स इन द क्रिटिकल आवर्स, ये एक बड़ी समस्या है जो जनरल पब्लिक अनरेस्ट को जन्म दे रही है। फिर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, वो कहाँ से आ रहा है? थर्मल एनर्जी सोर्सेज से है। और थर्मल में हम क्या यूज़ करते हैं? कोल एज ए फ्यूल। तो सप्लाई ऑफ कोल जो है उसकी शॉर्टेज हो रही है, तो वहाँ पर वो एक और उसको जो है हिट कर रहा है प्रोडक्शन को। So these are some kind of challenges which our power sector is facing for. Now क्या है इसका जो solution? सरकार ने क्या सोचा? Privatization of power sector. Here we are going to discuss the story of Delhi, the experience of Delhi. सबसे पहले जो दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो 1951 में इस्टेब्लिश हुआ। फिर बाद में उसको जो है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट को जो है दे दिया गया, डेसू जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद दिल्ली विद्युत बोर्ड बनाया गया, और फिर अभी की जो स्थिति है उसमें दिल्ली जो है की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 2 प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है। कौन कौन सी? एक है आपकी BSES जो रिलायंस एनर्जी लिमिटेड है, और एक है NDPL जो टाटा की कंपनी है। सो रिलायंस एनर्जी और टाटा की जो ये कंपनीज हैं, ये BSES रिलायंस एनर्जी की है और ये टाटा की है। NDPL टाटा की है और ये रिलायंस की है। ये दोनों ही प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन जो टैरिफ से रिलेटेड है या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके अंडर में ये आते हैं। इसके बाद ये देखा गया, ऐसा माना गया कि भाई ठीक है, करीब करीब 70-80 लाख जो वहाँ पे कंज्यूमर्स हैं उनको ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन करने से वहाँ कंज्यूमर का बड़ा भला होगा। लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस है वो ऐसा हुआ नहीं। ओनली टैरिफ हाइक वॉज देयर। थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क आया है, बट इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री और इट्स नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन। सो दिल्ली का जो तजुर्बा है, जो दिल्ली का अपना अनुभव है, वो यही है कि प्राइवेटाइजेशन होने से कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे बहुत लोड पड़ा है, और जो सुविधाएं थी, जो बेटरमेंट होना था इलेक्ट्रिसिटी का, वो असल में नहीं हो पाया है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल पार्ट. Now in our next video I will tell you about the social
the social infrastructure, especially the health sector of India. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you for watching. Have a nice day.